Computer now. Very good evening to all of you, beta. We have already started with thermodynamics. Okay, we have studied processes, systems surrounding intensive, extensive property. Then, beta, we have done work done during chemical reaction and expansion and contraction, maximum work done. Then, first law of thermodynamics, internal energy, then enthalpy of reaction. Right, beta? Okay. Then we have studied about all the different processes: adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric, right? And then beta we have done enthalpy of formation and enthalpy of what? Combustion. Okay, enthalpy of reaction, and when bond length are given, then it is reactant minus product. Remember, ये सब अपना हो चुका है बेटा, ये सब ये देखिए याद आ रहा है कि नहीं बेटा, ये सब किया था हम लोग ने, राइट? स्टैंडर्ड बॉन्ड दिया रहेगा तो क्या होता था? नंबर ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड. Clear? Okay, now today we are going to start with spontaneity. What we are going to do is start with. Acha, beta, scientists earlier came with the concept that normally exothermic reaction are spontaneous. Spontaneous means anything which happens on its own. Which happens on its own is known as what, beta? Spontaneous. Suppose, beta, if I have a lot of heat inside me, so I will try to lose heat, na, beta, and it will happen on its own. So normally exothermic reaction are spontaneous. बट एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होगा बेटा? अभी देखो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, तो मैंने कब रिएक्ट होगा? व्हेन आई सप्लाई हीट, देन इट विल फॉर्म प्रोडक्ट. तो ये अपने आप हुआ क्या? नो ना बेटा. Was this reaction taking place on its own? No na. I supplied heat and then only what you got? Product. Clear? So such a reaction is known as endothermic and it is non-spontaneous. So earlier scientists used to think only in terms of spontaneous and non-spontaneous in terms of energy. But that concept failed. Why? If I keep a ice cube outside, मैंने आइस क्यूब ऐसा बाहर रखा है तो क्या हो जाएगा? मेल्ट होगा कि नहीं? मैंने कुछ किया क्या? मैंने सिर्फ आइस क्यूब को बाहर रखा है, तो आइस क्यूब क्या कर रहा है? सराउंडिंग में से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? हीट अपने आप एब्जॉर्ब कर रहा है. हीट इज एब्जॉर्बिंग हीट मींस इट इज व्हाट? एंडोथर्मिक ना. और खुद से हो रहा है कि नहीं? तो देयर आर फ्यू रिएक्शन इन नेचर जो एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी क्या है? स्पॉन्टेनियस है. एंडोथर्मिक होने के बावजूद भी क्या है? लेकिन अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि एंडोथर्मिक होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था. हाँ, सो दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन रिएक्शन व्हिच आर स्पॉन्टेनियस. क्लियर? एंड दे आर एंडोथर्मिक. दे आर व्हाट? एंडोथर्मिक. बेटा इसको मेरे को बंद करने दो बेटा, इसलिए वो लो की दिखा रहा है बेटा. कुछ होगा नहीं. एक ना बेटा, सॉरी. डिस्कार्ड. resume shares. Okay. क्लियर है? तो फेल हो गया बेटा. देयर आर मेनी प्रोसेस व्हिच वर बेटा एंडोथर्मिक. वेयर इज आवर पीपीटी? वी आर डूइंग. ओ ये देखिए, ये इसे आपके सोई खुला. हम्म. नो नो. ओके, ये बॉन्ड एंथैल्पी ये सब हम लोगों ने कर दिया था बेटा. याद आ रहा है ना बेटा? ऑल दिस आई हैव डन. हेसेस लॉ भी बताया था कि नहीं बेटा? व्हाट वाज हेस लॉ? चल बेटा, I have given two kurkure packets. Remember, I gave one to you. You ate in one step. You gave it to me. What I did? आज मैंने एक खाया, दो खाया, ऐसा. I used it for 3 days. So you got energy 100 calories in one step. I got in 3 steps. So any reaction, same reaction, if it is taking place in single step or multiple step, total energy will be one and the same. तो देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, तो इसमें टोटल एनर्जी कितना हुआ? डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3. मैं डायरेक्ट भी रिएक्शन करवा सकता था कि नहीं? ए से डी. सो ए से डी विल बी व्हाट? डेल्टा H. तो डेल्टा H विल बी व्हाट? डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3.
क्लियर? तो देखो डेल्टा एच विल बी व्हाट, दोनों को ऐड कर दो तीनों को. Reaction for same reaction, if it is taking place in one step or multiple step, total energy will be one in the same. चलो बेटा, अभी मैंने आपको बोला इसको कैसे करोगे बेटा, बताओ. मुझे ये बनाना है और ये इन्फॉर्मेशन दो. क्या करोगे बताओ. तू कीड़ा, ये तीनों को ऐसा कीड़ा करोगे तुमको ये आना चाहिए. अगर आप रिवर्स करते तो whatever plus is given that will become minus. तो पहले भी तेरे को बता, मेरे को यहाँ पे तेरे को क्या चाहिए, सीओ यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा. CO2 तेरे को यहाँ पे लेफ्ट में चाहिए तो तू सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे बोलो, रिवर्स. ठीक है ना बेटा, देख लो बेटा आगे. देख लो CO2 क्या पे चाहिए था तो रिवर्स कर दिया कि नहीं उसको, बोलो बेटा. फिर H2 तो तेरा वहां पे ही था ना बेटा. हेलो, वो ऐड कर दे. बरोबर है. रिवर्स किया तो देख उसका, ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया. वो समझा कि नहीं बेटा. सीओ भी राइट में चाहिए तो ऐड कर दे बस. अभी सबको ऐड कर तो कॉमन चीज कट हो जाएगी. सबको ऐड करने के बाद देखो गिवन इक्वेशन मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए, गिवन इक्वेशन. आई होप यू आर गेटिंग इट. हेलो, यू शुड गेट व्हाट बेटा, गिवन इक्वेशन. क्लियर? ओके, तो देखो बेटा आपको गिवन इक्वेशन मिलेगा. कट हो गया कि नहीं. अभी आज आप बेटा ये सब भी ऐड करने का वो फाइनल आंसर होगा. दैट इज हेसेस लॉ. हेस लॉ. अभी देखिए क्या बोला है, इथिलीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आपको क्या दिया, हीट ऑफ कंबशन इज गिवन. कैन यू राइट हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन. व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन बेटा. ये फॉर्मेशन के लिए 1 मोल भी, इसको 1 ही मोल होना चाहिए ना बेटा. राइट, वाटर का फॉर्मेशन 1 मोल और हीट ऑफ कंबशन ये दिया. अभी उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन. ये सब करने की जरूरत नहीं थी बेटा, मैं डायरेक्ट इससे भी कर सकता था. कैसे, हर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर. तुझे कंबशन का दे दिया है. ये क्या तेरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ O2. O2 का अकेला है कितना होता है, 0. तो यू डोंट नो इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, लोग दिया गिवन ना कंबशन का डेल्टा एच. देख बेटा. अच्छा, अगर तेरे को फिर भी नहीं आता है तो तू ये तीनों में ऐसा कीड़ा कर के ताकि तेरे को ये आए. राइट, वी वांट व्हाट बेटा, दे हैव टोल्ड कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन. वी हैव टू गेट दैट. बट ये ऐसा मत करिए, लॉन्ग कट हो जाएगा. मैंने तेरे को शॉर्टकट बताया कि नहीं. अरे तुझे इसका वैल्यू पता है कि नहीं, वाटर का. वाटर का वैल्यू यू नो ना बेटा, दे हैव गिवन ना. कार्बन डाइऑक्साइड यू आल्सो नो ना बेटा. ऑक्सीजन इज ऑलवेज अकेला, इट इज व्हाट, 0. तो व्हाट विल डू बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. और इथिलीन का आपको पता नहीं है लेकिन उसका कंबशन का वैल्यू दे हैव गिवन ना बेटा. लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कर सकते थे बेटा. देख रहा है क्या करते थे तेरे को, ये पहला देखो तेरा टू फाइंड बोला ना इथिलीन का, तो पहला कार्बन जब उस तरफ ही है बेटा तो ऐड हो जाएगा. तो क्या करेगी बेटा, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगी कि नहीं पूरे इक्वेशन को. अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको डायरेक्ट वैसा करना है लॉन्ग कट मेथड से. फिर एच के आगे भी 2 है तो पहला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2 से. तो डबल हो जाएगा वो वैल्यूज जो भी है. एसिटिलीन तेरे को राइट में चाहिए, यहाँ पे कहां पर है, लेफ्ट में ना. फिर रिवर्स इट. समझ में आ गया ना बेटा. अब फिर सबको ऐड कर दे, सब कट कट होके तेरे को वही मिलना चाहिए. गिवन इक्वेशन मिला कि नहीं, आंसर आ जाएगा. थोड़ा ये लॉन्ग कट था. चले खुद से करो. फॉर्मेशन ऑफ H2SO4. H2SO4 का फॉर्मेशन का रिएक्शन में क्या होता है बेटा, देखना बेटा. H होगा S होगा तो देखो बेटा फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या है, पहले लिखो क्या. अरे फॉर्मेशन मतलब ये 1 मोल ही होना चाहिए. इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन. तो यहाँ पे तू कीड़ा कर सकते लेकिन इसके आगे 1 ही होना चाहिए. क्या करेगी बोल बेटा, सबको ऐड कर दे बेटा. देखो तेरे को गिवन इक्वेशन आएगा कि नहीं. So now we are doing beta spontaneous and non-spontaneous reaction. Earlier what we used to believe beta, बोलना बेबी. पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस. बराबर है कि नहीं. देखिए मोर एक्सो में प्रोडक्ट विल बी लेस ना, तो एक्सोथर्मिक इज लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस एंड एंडो विल बी नो. इफ यू सप्लाई हीट टू द रिएक्टेंट देन ओनली इट विल बिकम प्रोडक्ट. राइट ना.
Energy or spontaneity is what beta directly proportional, and stability and energy inversely. Lower the energy, higher the stability. देख एसिड और बेस को मैं रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ओ माय गॉड, देख रहा बेटा ये डेल्टा एच तुम्हारा क्या रहा है? नेगेटिव ना। ये रिएक्शन क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। बट मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो जाता है बोलो? एंडोथर्मिक। और वो भी अपने आप ही होता है ना, बर्फ को बाहर रखेगा तो खुद से होता है ना मेल्ट। बराबर है। तो बेटा अभी मैं खाली ऐसा एक्सो और एंडो पे कहना डिसाइड स्पॉन्टेनिटी, तो साइंटिस्ट तो चलेगा नहीं बेटा। नमक को पानी में डाल देते तो देख बेटा क्या होता है? एंडोथर्मिक। नमक को तू पानी में डाल, अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा क्या? ए? अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एंडोथर्मिक मतलब खुद से होगा नहीं ना, बट ये तो एंडोथर्मिक होने के बाद खुद से हो रहा है ना बेटा। तो कैन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी? नो। क्लियर है? व्हेन सॉल्ट इज नो। तो अभी साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला बेटा? हम लोग ये सब जाने बेटा इसको। साइंटिस्ट लोग ने बोला कि कुछ नया टर्म लाएंगे, तो इसलिए साइंटिस्ट लोग ने अभी नया टर्म क्या लाया? एंट्रोपी। क्या लाया नया टर्म? एंट्रोपी। लुक बेटा, therefore the new term was introduced, क्या नाम है? एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कितना मूवमेंट होगा रैंडमनेस। ये देख बेटा, सॉलिड है, लिक्विड और गैस, मेरे को बताओ कहाँ पे आइटम्स एकदम क्लोजली पैक्ड है? सॉलिड में तो यहाँ पे मूवमेंट इज लेस, लिक्विड में इट विल बी मोर, गैस में इट विल बी वेरी हाई और नॉट मी, तो वेयर रैंडमनेस इज मैक्सिमम गैस। तो भी आप मेरे को बताओ, भी ये इसने क्या बोला? कोई भी प्रोसेस में if entropy increases means randomness increases, then that process will be spontaneous। अच्छा मेरे को बता, बर्फ है, ये आइस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, किसका रैंडमनेस ज्यादा होगा? बराबर है ना बेटा? तो व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसलिए बेटा बर्फ से जब पानी बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो एंट्रोपी इंक्रीजेस, लिक्विड से गैस बनेगा तो और इंक्रीज होगा कि नहीं बोलो बेटा? ये फॉर्मूला कैसा है, क्यों रिवर्सिबल बेटा है वो भी मैं बताता हूँ बेटा। डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस होगा तो स्पॉन्टेनियस, कम होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी एग्जाम में ऐसा बोलेंगे बेटा। चल बेटा बता यहाँ पे क्या हो रहा है बोल? इस सॉलिड से क्या हो रहा है? तो रेंडमनेस बढ़ रहा है, तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस पॉजिटिव। आर यू गेटिंग इट बेटा? चल बेबी, यहाँ पे कौन था? गैस। ये भी क्या है? गैस। ये क्या है? तो उल्टा हो रहा है ना बेटा। तो डेल्टा एस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? चल अभी तू मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा? दोनों तरफ गैस गैस है, तो अभी करेगी क्या? तो नंबर दे, नंबर देगी। मोल्स कितने हैं यहाँ पर? इसके आगे 1 मोल है, यहाँ पे कितना है? तो अगर दोनों तरफ गैस रहेगा तो नंबर काउंट करने का, जहाँ पे नंबर ज्यादा वहां पे रैंडमनेस ज्यादा। समझ में आया क्या? बोथ आर गैसेस बट नंबर थे यहाँ पे मॉल, तो दो है ना बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव। चलो अभी इन दोनों में क्या होगा बोलो? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। व्हाई यू डोंट नो? देखना लेफ्ट में देखो सिर्फ सॉलिड नजर आ रहा है, राइट में क्या नजर आ रहा है? सॉलिड। तो जानते हैं गैस है कि नहीं? तो फाइनली सॉलिड से गैस हो रहा है, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया कि नहीं? क्या ये बार बार पीछे लग रहा है? चले बेबी, दोनों गैस है, 1 1 मोल लिया, अब क्या करेगी? NO2 भी 1 मोल है, NO भी 1 मोल है, N2O4 भी 1 मोल है, दोनों 1 1 भी लिखा है ना, आगे 1 1 ही है ना, कुछ नहीं लिखा है। तो जब बेटा दोनों गैस हो, दोनों साइड मोल सेम हो, तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करा। NO में कितने एटम है नजर आ रहा है बेटा तेरे को? तो यहाँ पे टोटल एटम कितने आ रहे हैं? तो कहाँ पे मच मच ज्यादा होगा? 6 हो गया। समझ में आ गया ना बेटा? Okay, second law, total entropy of the system and its surrounding increases in a spontaneous process. This is the second law of thermodynamics. Okay, अब बेटा प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या? अब तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि जिसमें डेल्टा एस बढ़ता है बेबी, उसमें अपना एंट्रोपी पॉजिटिव होते जाएगा बेटा, बराबर है कि नहीं? स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, लेकिन अभी बताया ना सॉलिड से लिक्विड। बट बेटा लाइफ में ऐसे भी प्रोसेस थे, ओ माय गॉड, सुनो बेबी, ऐसे भी रिएक्ट थे जहां पे डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी प्रोसेस क्या आ रहा था? तो साइंटिस्ट लोग ने बोला अरे यार ऐसा कैसे हो गया? तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि हम लोग फिर डेल्टा एस टोटल लेंगे। क्या लेंगे? डेल्टा एस अकेले का नहीं लेने का, सिस्टम का नहीं लेने का, दोनों लेने का, सिस्टम प्लस, मतलब मैं तेरे को बताता हूँ।
मैं सिस्टम हूँ, आप लोग सराउंडिंग हो। मेरा डेल्टा एस क्या आ रहा था, नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपका भी एंट्रोपी होगा, तो हम दोनों का मिला के टोटल होगा, वो क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल भी देता हूँ। आज आप भाई किधर है, अच्छा, सिस्टम क्या लेने का, देखो मैं सिस्टम और आप लोग कौन हो, सराउंडिंग, हम दोनों का मिलके अगर पॉजिटिव आएगा तो ही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो आया तो इक्विलिब्रियम, देन इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इससे बेस पे तुम्हारे क्वेश्चन बताते हैं। आजा भाई, पहला ही पेज है, पहले ही पेज में देखिए यहाँ पे, हेसेस लॉ देखे आ गया कि नहीं बेटा, ये बोलो ना, क्या चिल्ला रहे थे हैं, व्हाट मैन, वेयर इट इज, ये सब मैंने करवाए भाई, किसी में डाउट रहेगा तो मार्क करके लेके आना, मैं करवा दूंगा। ये करना है बेटा, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कंबशन का दे दिया है ना बेटा, क्या है चिद्दी है बेटा, ये ले, कंबशन बोला मतलब किसका, एक ही मोल का होता है, C6O2, कंबशन का ट्रिक क्या दिया था बोलो, इक्वेशन फास्ट लिखने का बोल पे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे y/2 तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/2, और उन्होंने देख इसका एंथैल्पी दे दिया ये रिएक्शन का, और तुमको वाटर का भी दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे दिया, और बेंजीन का फॉर्मेशन ढूंढना है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, और ऑक्सीजन का कितना होता है 0। आ गया कि नहीं बोलो, अरे समझा क्या, हाँ, ये सब इतना सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ये पागलगिरी किया है लोग, मैंने तुमको शॉर्टकट मेथड बताया। ये सब अपना हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये भी सब हो गया था, अरे कहाँ पे ये सब हो गया था ये, व्हाट इज एंट्रोपी मैन ब्रो, ये रहा, ये रहा, आ गया आ गया आ गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा हेडिंग, हेलो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, राइट द कंडीशन में डेल्टा व्हिच वुड रिएक्शन विद स्पॉन्टेनियस, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, ये मैंने अभी तक बताया नहीं, चले इधर पे बता, गैस से लिक्विड बन रहा है तो, वेरी गुड, रॉ एग से बॉइल्ड एग बन रहा है, रॉ रॉ क्या रॉ एग में लिक्विड फॉर्म में रहता है कि नहीं अंडा, और सॉलिड बन जाता है ना, स्टीम से वाटर, हाँ, गैस गैस, यहाँ पे भी गैस गैस, यहाँ पे कितने गैस है, दो, यहाँ पे टोटल गैस कितने हैं, 3+1 ना 4, तो वेरी गुड, ये भी गैस है ये भी, लेकिन यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हाँ स्पॉन्टेनियस, ये मस्त है रे भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कितना रखा है मैंने, 2, यहाँ पे 0.5, 2 एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थोड़े नजदीक हो गए कि नहीं, हाँ 0.5 में दूर दूर हो गए कि नहीं, तो ग्राफाइट है और ये डायमंड, डायमंड बहुत क्लोजली पैक्ड होता है बेटा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए इसका, 6 का देख तो बेटा, और ये ब्रो देख नॉन स्पॉन्टेनियस होगा 6 का, बरोबर है कि नहीं बेटा, क्लियर है। यहाँ पे देख क्या लिखा है, स्ट्रेच्ड रबर एंड लूज रबर, स्ट्रेच रबर करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेच से क्या पे हो रहा है, लूज, नहीं स्ट्रेच से लूज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, देख ये स्पॉन्टेनियस होता है, हाँ यही तो है ना बेटा, स्ट्रेच्ड रबर, और क्या होगा, स्ट्रेच कर देगी ना बेटा तो उसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स विल बिकम व्हाट, वेरी, स्ट्रेच करेगे ना बेटा, हाँ स्ट्रेच रबर का है ना बेटा, ज्यादा ये होता है बेटा, एंड लूज रबर बोला है ना बेटा, मोशन कहाँ पे ज्यादा होगा बेटा, स्ट्रेच में होगा या लूज वाले में, स्ट्रेच्ड रबर में बेटा मोशन मीन, पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स तो दोनों में सेम ही होगा बेटा, लेकिन व्हेन यू स्ट्रेच इट बेटा व्हाट विल हैपन यू नो, एक मिनट, हाँ इसका यार ये और एक पॉइंट है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, बेटा, ये स्ट्रेच रबर बैंड एंड लूज रबर बैंड, ए गूगल करना बेटा, स्ट्रेच रबर बैंड और लूज में क्यों इसका ज्यादा होता है वो देख, चल ये बता पहले, ओरली बता, सॉलिड से एक्वेस, ये सब बाकी तो सब समझाना बेटा, खाली ये वाला ही मेरे को बताने का, फोर्थ वाला देखो ना बेटा,
फोर्थ वाला स्ट्रेच्ड रबर बैंड एंड लूज रबर. स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू लूज रबर बैंड. क्या है माइनस? हाँ, स्ट्रेच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पे अभी लूज हो रहा है ना बेटा. हाँ, तो तुम लोग याद रखो, स्ट्रेच से लूज में हाँ स्पॉन्टेनियस. लेकिन कुछ रीजन क्या लिखा है, कुछ पता है क्या? देखा तो. हाँ, मोड ऑर्डर, वही मैं तेरे को बोलने वाला था. बरोबर है, मैं वही बोल रहा था. अगर कुछ स्ट्रेच कर देगी तो एटम्स कहाँ पे जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएगा, एकदम ऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे. लूज में वो लोग यहाँ वहाँ कहाँ पर भी हो. Stretching a rubber band, no. When a rubber band is stretched, it becomes more order and has lower entropy. This is because the molecule in the rubber band, ये देखिए ना, जब मैं स्ट्रेच करता हूँ तो यार अंडर टेंशन, स्ट्रेच करेंगे तो यार अंडर टेंशन और नॉट. Stretching the rubber band also warms it up due to an exothermic process. Relaxing where a tension is released, the rubber band entropy increases as the strand becomes more disordered in all directions. मस्त क्वेश्चन है, लेकिन अभी तुमको याद रहेगा ना. इसमें बच्चे रॉन्ग करते हैं अक्सर, क्योंकि उनको क्या लगता है कि स्ट्रेच किया तो मतलब बहुत बड़ा हो गया, मतलब रैंडम एटम्स ज्यादा बढ़ गए. ऐसा नहीं होता है. इट इज अंडर टेंशन. चलो बेटा, बस तो हो गया बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं. तो ये मेरे को तुमको बताने का था. अभी ये स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस सब मैं तुमको बताते, और इसमें फटाफट हो जाएगा. कम ऑन ब्रो, इसमें भी ज्यादा नहीं है. लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? लाइक डेल्टा एस टोटल हम लोग करते थे बेटा. चल फॉर्मूला लगा, ए डेल्टा एस टोटल इज नॉट सिस्टम प्लस. अच्छा डेल्टा एस, अच्छा सराउंडिंग का क्या होगा बेटा? सराउंडिंग को हीट मैं दूंगा ना बेटा, राइट. तो ये इसका फॉर्मूला क्या? माइनस डेल्टा एच बाई टी. अभी बेटा सराउंडिंग की जगह पे क्या डालोगे आप? माइनस डेल्टा एच बाई टी. अरे बोलो ना बेबी. तो चलो बेटा, डेल्टा एच टोटल वाज आल्सो डिस्कार्डेड. क्यों? हाँ, पर पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, वी ऑलवेज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम. साइंटिस्ट लोगों का अब तक हम लोग ने जो भी पढ़ा था, हम लोगों ने सब किससे पढ़ा था बोलो बेटा? विद रिस्पेक्ट टू. यहाँ पे पहली बार हम लोग टोटल लेना, साइंटिस्ट बोला नहीं टोटल नहीं है, सिस्टम के चीज में कुछ पता. तो वहां पे नया टर्म आता है, विच व्हाट कम्स गिब्स फ्री एनर्जी. क्या टर्म आएगा? एंड इट इज फॉर सिस्टम, इट इज फॉर सिस्टम. व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? पहले मेरे को एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बता था. सुन ले बेटा, लेमैन्स लैंग्वेज. यार ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है. ओके, layman's language में what is Gibbs free energy? It is the amount of energy which is used to do useful work, which is used to do. अच्छा चलो बेटा, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है दिन में 8 आवर्स पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ते सिर्फ कितना? 2 आवर्स. तो हाउ मच एनर्जी यू हैड अवेलेबल? 8 ना. पढ़ने का 8 का था, बट आपने कंस्ट्रक्टिव काम में कितना यूज किया सिर्फ? तो उसको कहते बेटा गिब्स फ्री एनर्जी. मेरे पास 100 रुपीज था, मैंने तुम लोग को पार्टी के लिए बुलाया, फिर मैंने सिर्फ 10-10 रुपए का तुम लोग को 3 वड़ा पाव दे दिया. अवेलेबल मनी कितना था मेरे पास? 100. लेकिन पार्टी में यूजफुल वर्क के लिए कितना खर्चा किया हम लोगों ने? सिर्फ 30. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी. क्लियर है? चलो. एक पापो पापो हो रहा है. ए तन्वी बेटा, आर यू गेटिंग ना डियर? हेलो Yes, sir. तन्वी, हाउ वाज योर एग्जाम? हेलो. हेलो, हाउ इट वाज वाज योर ओके. एग्जाम बेटा? हाँ, एग्जाम इट वाज कैसा था ओके. तेरा? ठीक था. मेरे को पेपर भेजा नहीं तूने बेटा. वेर यू अब एबल टू? भेजती हूँ. हाँ लेकिन आ रहा था ना सब, तू कर पा रही थी ना बेटा सब? हाँ. ओके, वेरी गुड बेटा. हाँ नमस्कार सर, बोला. हेलो. हाँ हाँ ओके.
ओके, बंद करना है, कम कर देता हूँ ना, बंद ही कर दो। बस क्लैप ऐसा कर। ओके, ऑल ऑफ यू नाउ लिसन है। भी पहले ही समझा ना बेटा व्हाट इज गिब्स फ्री। अच्छा, क्यों डिस्कार्ड किया? टिल नाउ वट एवर वी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। दिस फर्स्ट टाइम वी वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट डेल्टा एस टोटल। दे सेड नो, टोटल नहीं चलेगा, आई वांट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ओनली। सो न्यू टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय with respect to system, हाँ बेटा, because in thermodynamics we study only with respect to system. So what was introduced? Gibbs free energy equation किसने बनाया था? इसका डेरिवेशन नहीं है तुम लोगों को। दो साइंटिस्ट, एक एक्चुअली एक उसमें से मैथमेटिशियन था, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज। किसने बनाया था? गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज ने मिलकर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो बेटा? इसका डेरिवेशन नहीं है, खाली आपको याद रखना है। अच्छा तू मुझे बता, ए डेल्टा एच टोटल का फॉर्मूला क्या था? सिस्टम प्लस सराउंडिंग था। सराउंडिंग के लिए हम लोग ने क्या लिखा था बोल बेटा? ये देखना, डेल्टा एच बाई टी। पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया बेटा? माइनस टी से। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट बेटा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस टी, ये माइनस माइनस कट होके टी टी कट होके प्लस हो जाएगा कि नहीं? आई एम रीअरेंजिंग इट बेटा नाउ। अच्छा, डेल्टा एच को पहले लिखा, ए व्हाट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस डेल्टा जी ना, तो इसके जगह पे मैं डेल्टा जी लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अब बेटा सुन, मस्त है, यहाँ पे देखना बेटा। अभी तो मेरे को था डेल्टा डेल्टा एस पॉजिटिव होता तो स्पॉन्टेनियस होता ना, लेकिन डेल्टा एच जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। एक इंपॉर्टेंट कॉल है मतलब। हाँ नमस्कार सर। हाँ 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 हाँ, बोलो ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो कल हो सकता है कुछ। कितने कितने बजे सर बोलो ना? तो मैं कितने बजे तक आऊँ? 11:30 12 ऐसा चलेगा आपको? 11:30 12? हाँ तो, हाँ तो मैं आपको एक सुबह मैसेज करके आ जाता हूँ सर, ठीक है ना? हाँ, 1 घंटे पहले फोन करना, 1 घंटे पहले करूंगा सर, ठीक है ना? हाँ 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 मैं आपको 1 घंटे पहले ही फोन कर लूंगा, ठीक है ना? ओके ओके। अच्छा, आपका लोकेशन आप वो भेज सकते हो क्या? अगर लोकेशन इम्पॉसिबल मेरे को आने में, जब मेरे को आपने एड्रेस भेजा वो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है ना? ओके। अच्छा, नो नो नॉट अ प्रॉब्लम सर, मैं आ जाऊंगा। ये ना बागेश्वरी ना बेटा, बागेश्वरी। ओके 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 ठीक है। ओके ओके, वो सबवे से पहला ही लेफ्ट लेना आपने बोला, राइट ना? हम्म। हम्म। हाँ 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 हाँ, आपने वो बताया था मुझे, बराबर। यस यस, मैं फोन कर लूंगा, कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको फोन कर लूंगा सर, ठीक है ना सर? या या हाँ, चलो बच्चे लोग आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। ए किड़े बगरे, ये डेल्टा एस टोटल है ना? अच्छा बेटा सुने, गौर, गौर नहीं क्या? सिमरन नहीं, गनवीर, गनवीर गनवीर बेटा, गनवीर ना बेटा। अभी बेटा डेल्टा एस टोटल हो पॉजिटिव होता तो स्पॉन्टेनियस होता था। अब यहाँ पे देखिए, माइनस इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा ना, कॉमन साइंस है ना, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा मतलब प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। उल्टा हो गया उसका, डेल्टा जी पॉजिटिव देन नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड जीरो होगा मतलब इक्विलिब्रियम। अभी तुम्हारा मेरे को देखने का है, मैं हूँ अभी बेटा ना, आपको इतने ही समय बेटा देख लो, अब डायरेक्ट आपको खाली ये फॉर्म, हाँ ये कंडीशन मेरे को देखने दो बेटा, ये तुम लोग को दिया है कि नहीं दिया है?
ये देखिए इक्वेशन मैंने बताया कि नहीं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेलो, चल बेटा, अभी वो लोग ने कुछ इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं तेरे को बता देता हूँ। यहाँ पे देख ले भाई, फर्स्ट सब सब क्वेश्चन पहले पहले आप लोग है ना ये थियरी कर लेते चले। अच्छा मेरे को बताओ, एग्जाम में ना कभी कभी ऐसा एमसीक्यू आएगा बेटा, दिस विल कम फॉर एमसीक्यू। अच्छा एक्सोथर्मिक बोला मतलब डेल्टा एच इज व्हाट, टेल मी। नेगेटिव। और मैंने आपको ना ऐसा एग्जाम में दो कंडीशन दिया, प्लीज लिसन केयरफुली। डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, और मैं बोलूंगा बताओ वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा मैंने रिएक्शन क्या दिया बोल बेटा, हाँ तो यहाँ पे नेगेटिव डालेगी, इसके आगे माइनस है और ये तेरा क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर क्या आएगा तेरे को, नेगेटिव, और ये भी क्या है, तो अगर ये -10 होता और ये भी -10 होता तो फाइनल आंसर तेरे को -20 आता ना। अब ये प्लस हो सकता है क्या कभी भी, नहीं ना। तो योर रिएक्शन इज व्हाट बेटा, डेल्टा जी तेरा क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। एमसीक्यू आएगा, व्हेन द रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो आपको ऐसे कंडीशन देंगे, तो आपको क्या देना, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एच केस 2। केस 2 इकडे बघ रे, डेल्टा मैंने एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव दिया और डेल्टा एस भी क्या दिया है नेगेटिव। सुन बेटा ये यहीं का इकडे बघ, ये देख यहाँ पे ये नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब मेरे पास दो चीज हो सकती है, या तो तेरा नेगेटिव बड़ा हो सकता है या तो पॉजिटिव। -10 है और +20 है तो तेरे को फाइनल आंसर क्या आएगा +10। लेकिन अगर -30 है और +20 है तो तेरे को फाइनल आंसर क्या आएगा -10। बराबर है कि नहीं। अच्छा तो अभी आप मेरे को बताइए, ये तेरा पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव कब होगा, जब तेरा ये पॉजिटिव नंबर क्या होना चाहिए कम। पॉजिटिव नंबर कम कब होगा, जब तेरा टेम्परेचर क्या होगा कम। समझ में आता है मैन क्या बात करता है। तो एट लो टेम्परेचर तेरा क्या हो जाएगा, अगर मैंने टेम्परेचर लो ले लिया तो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर तेरा पॉजिटिव बड़ा हो जाता मतलब टेम्परेचर क्या होता हाई, देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट। अच्छा आपको एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं बेटा, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। और आपको ऐसा ऑप्शन देंगे, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा एट लो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है। ये थी बेटा यहाँ पे देख, अभी ये क्या दिया तेरे को, डेल्टा एच इज पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बट ये फाइन फॉर्मूला में तो -d, तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब तेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो प्लस बड़ा हो सकता है या तो माइनस बड़ा हो सकता है। माइनस कब बड़ा होगा, जब तेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पढ़ोगे कुछ नहीं समझेगा, ऐसा देखोगे यहाँ से समझेगा मेरा, तो मैंने नोट से देखोगे। तो लो टेम्परेचर होगा तो बेटा क्या होगा, अगर तेरा अरे लो टेम्परेचर मतलब नेगेटिव छोटा होगा तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा कि नहीं, तो रिएक्शन विल बी व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव है ना, तो नॉन, डेल्टा एस के लिए था वो, तो इट विल बी व्हाट नॉन स्पॉन्टेनियस एट। अच्छा यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज मोर, देन ओवरऑल आंसर विल गेट नेगेटिव और नॉट, टेल मी। तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट। अच्छा और एक कंडीशन बच गया बेटा, अच्छा ये डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं मतलब कौन सा प्रोसेस होता है पता है ना, एंडोथर्मिक, बराबर है कि नहीं। चलिए बेबी सिमरन, अरे यार मेरे को बार बार वही नाम आ जाता है तेरा, जोया जोया ना, हाँ जोया। मैं देख डेल्टा एच कितना है बोल बेटा तेरा पॉजिटिव, डेल्टा एस क्लियर है। तो अभी तू मेरे को बता क्या होगा बोल, ये देखिए पॉजिटिव है और ये तेरा नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव का चांस है क्या, तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टाइम। चार कंडीशन समझाइए बेटा, एमसीक्यू आ सकते हैं। अब बेटा इस पे डायरेक्ट समझे, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था बोल, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था बोल, इसमें इसमें डाल दे ये सराउंडिंग में, तो ये हो गया कि नहीं। फिर हम लोग ने ये भी प्रूव किया था कि नहीं, अरे डेल्टा जी इज -t डेल्टा एस टोटल। अरे सुन बेटा, खाली डेल्टा जी लिखा मतलब इट इज ओनली गिब्स एनर्जी बेटा। अगर ये इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो भी तू सॉल्व करेगी तो डेल्टा एच इज इक्वल टू मिलेगा, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी डेल्टा एच मिलेगा। अच्छा इसमें बेटा याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे फाइंड क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब below this temperature reaction will be what spontaneous and above this temperature reaction will be
इसको क्या कहते हैं, चेंज ओवर टेम्परेचर या क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ए खाली डेल्टा जी लिखा है मींस इट इज ओनली गिब्स एनर्जी, इट इज ओनली गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला ये बाय हार्ट करना है बेटा। डेल्टा 0 प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के। ए के क्या है बेटा, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे देखिए प्रोडक्ट है ना बेटा, और ये रिएक्टेंट है कि नहीं। इसमें भी हम लोग सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, गैस एंड एक्वेस को ही, सॉलिड और लिक्विड को लेने का मुंह में सम लूप करा होगा तो सब बता हुआ है। अच्छा ये अगर तेरा इक्विलिब्रियम होता तो ये जीरो हो जाता था कि नहीं, तो ये 2.303 तेरा कहाँ पे चला जाता, इधर पे चला जाता था कि नहीं, तो डेल्टा जी जीरो क्या बन जाता था बोलो बेटा। जब भी ऊपर जीरो लिखा रहता है वो क्या रहता है बोलो, स्टैंडर्ड। अरे कहाँ पे भी ऊपर ऐसा जीरो लिखा रहेगा दैट इज विच गिव्स फ्री एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के। इतना सब पढ़ा। अभी ये बेटा यहाँ पर आप लोगों ने बताया सर, आपने ये नहीं बताइए डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई डी, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या। सुन बहुत मस्त है ये कॉन्सेप्ट, मतलब वो रिवर्सिबली टेम्परेचर और हीट बेटा एक दूसरे से क्या है, रिवर्सिबल है बेटा। क्यों है ये ले। सुन बेटा मैंने तुझे ना पानी पानी को बॉईल करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए बोलो, 100 डिग्री होना चाहिए, बोलो ना। मैंने तुमको दो पानी का सैंपल दिया है, एक पानी का सैंपल मैंने तुमको 20 डिग्री पे दिया, वाटर सैंपल इज गिवन टू यू विच इज एट व्हाट बेटा, एंड आई गिवन यू वन वाटर सैंपल विच इज एट 80 डिग्री। अच्छा 20 डिग्री में रैंडमनेस ज्यादा या 80 डिग्री में रैंडमनेस ज्यादा है बोलो, 80 में, वेरी गुड। यहाँ पे तेरा रैंडमनेस क्या था बोलो बेटा, मोर। यहाँ पे क्या था, अच्छा अभी तुझे इसको बॉईल करवाना है तो यहाँ पे तेरे को किसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा तेरे को, अरे 20 को 100 पे लेके जाने का है ना, तो यार व्हाट बेटा, हीट इज मोर ना, तो मतलब क्यू तेरे को यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा मोर। बट टेम्परेचर यहाँ पे तेरा क्या था बोले, टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, लेस। यहाँ पे टेम्परेचर इज व्हाट मोर, तो तेरे को हीट कितना सप्लाई करना पड़ा बॉईल करने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे को रिवर्सिबल है कि नहीं बोलो बेटा, समझ में आया ये, अरे बोलो ना। अगर देख बेटा तेरा टेम्परेचर अगर लेस है तो हीट तेरे को क्या करना पड़ेगा मोर, इसलिए वो हम लोग ने क्या लिखा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू वॉट, दिख रहा है बेटा, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों एक दूसरे को। अब तेरा आंसर में आ जाते, चलो बेटा फटाफट। इधर से हम हमने किया था ना, चलो बेटा ये राइट द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस व्हेन द टेम्परेचर व्हेन द रिएक्शन वुड बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। चलिए ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का कौन सा था बेबी, पहला ही कंडीशन था, क्या था पहला कंडीशन बोल, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब समझा ये क्यों मैंने बताया था, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, तो इट विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ना एट ऑल टेम्परेचर। ये देख बेबी, ये देख आया कि नहीं यहाँ पे, ये आज हम लोग ने कर दिया पूरा। ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंट्रोपी, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। अरे पानी है उसको गर्म करेगी तो रेंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं। व्हाई डज एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज ऑन फ्यूजन, अरे सॉलिड से किस में चला गया बोलो बेटा, लिक्विड में गया कि नहीं। तो देखना दिस इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव सिंस द डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस इंक्रीजेस ना बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहता है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड होता है, लिक्विड में डिसऑर्गेनाइज्ड होगा कि नहीं। डेल्टा एच अलोन कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बाय, अरे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ना बेटा। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा या डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव होगा या नो, ये हम लोग ने बताया था कि नहीं। अरे डेल्टा एच पे हम लोग नहीं करते बेटा, वी आइदर डू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी और डेल्टा एस। प्रेडिक्ट इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा डिक्रीज, वो लिक्विड टू सॉलिड इंक्रीज, हाँ हाँ डिक्रीज ना, हाँ तो लिक्विड टू सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज हुआ ना भाई। तो बेटा कहाँ पे गया आंसर देखना बेटा, एंट्रोपी इज मिनिमम बराबर है कि नहीं, इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 115 देन दिस, अच्छा नहीं पहला क्या बोला था, हाँ मॉलिक्यूल्स आर इन ऑर्डर एंड देयरफॉर एंट्रोपी क्या है बेटा, डिक्रीज। पहले का आंसर क्या था, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं बोलो। अब क्या बोला बेटा,
Temperature of a crystalline solid is raised from 0 to 115. खत्म बेटा, कितना चिंतित था बेटा. What do you understand by spontaneity? अरे, a reaction is said to be if it proceed on its own without taking external support. Delta G0 for the reaction is found to be 0. What will be the value of equilibrium 1? फॉर्मूला में डाल दे. G0 तेरा 0 हो जाएगा बेटा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 2.303 RT log to the base 10 Kc. बराबर है. ये तेरे को 0 दिया है, तो भी Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा? log Kc. ये भी नीचे चला 0. हाँ, ये तेरा 0 है, तो अभी बेटा ये पूरा नीचे चला. 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट बेटा? 0 ओनली ना बेटा. तो तेरे को ये 0 मिल जाएगा. लॉग ऑफ केसी 0. तो लॉग किसका 0 होता है बेटा? 1 का ना. अरे बोलो ना. लॉग यू नॉट डन. अरे बेटा याद रखो, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. चलो, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व फ्रॉम 1 मोल ऑफ टू वाटर. एंट्रोपी ऑफ क्या हो रहा है बोलो बेटा? चेंज. 1 मोल ऑफ सॉलिड से क्या बन रहा है? वाटर ना. तो फॉर्मूला ये लिखो बेटा. अच्छा, वहां पे तुम लोग ये फॉर्मूला लिखो. मैंने लिखवाया था ना तुम लोगों को? नहीं लिखा था. एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू. लिखो लिखो, चलो मैं बता. एंट्रोपी ऑफ ये एफ मतलब फ्यूजन इज इक्वल टू व्हाट? फ्यूजन कब होता है बोलो? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन. बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं तुमको क्या देने वाला हूँ? देखो ना बेटा, यही दिखा ना बेटा, देखना. आइस से बर्फ बनना है मतलब फ्यूज हो रहा है कि नहीं बोलो भाई? फिर एंथैल्पी ऑफ क्या आएगा बोल? वेपराइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन वेपराइज का टेम्परेचर, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा. चल, कितना दिया बोल अभी? और इट इज ऑलवेज फॉर 1 मोल. हाँ बेटा, फॉर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया बोल बेटा? 6025 ना बेटा. अपॉन टेम्परेचर कितना दिया है? हो गया. क्या था? Oh yeah, baby. No, it is not there. I want you to copy this. फ्यूजन, ये वेपराइजेशन, वैसा सब्लिमेशन का भी हो सकता है कि नहीं बोलो? हाँ, सब्लिमेशन. सैटरडे को तुम लोग क्या करने वाले बोल दो मेरे को. आ जाओ ना. कितने बजे घर बा तेरा? बट मॉर्निंग में मेरा 11 होता है. मॉर्निंग में कितने बजे फ्री होते हैं तुम लोग? सैटरडे का क्या स्केड्यूल होगा? मंडे छुट्टी. क्या बोलो भाई?
हो गया बेटा, चलो। क्या घर में का मूड आ गया तुम लोगों को सबको? ए मेरे को क्वेश्चन बताना तुम लोग का क्या है। एंटर रिमाइंडर फॉर टुडे, मेरे को एक मैसेज आ गया, टुडे क्लास एट 5:30 PM। या अब बोलते जाओ। मैं यार क्या गलत ग्रुप में मैसेज डाल देता, मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। इतने सारे ग्रुप्स है ना। हाँ चलो, वही हो गया था बेटा। आज चलो ये हो गया बेटा। अभी देखो, अरे हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं बेटा फटाफट। कॉन्सेप्ट सब हो गया बेटा। अभी चलो क्या करने का है, क्या लिखा है पढ़ो। ये कैलकुलेट द एंट्रोपी है। डज एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस हैव हायर लार्जर एंट्रोपी बिफोर और आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ आयंस? हाइड्रेशन मतलब जब पानी उसको सराउंड कर देता है, ठीक है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा? NaCl को पानी में डालेगा तो Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाता है। Na प्लस को पानी सराउंड करता है, Cl माइनस को भी पानी। तो हाइड्रेशन इज द टर्म यूज फॉर अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द आयंस व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। It is the special case of dissolution of energy with the solvent being water. Before hydration, an aqueous solution of Mg plus ion will have what? Larger entropy. As after Mg2 plus, ion have achieved what? पहला अकेला था Mg2 plus, अब पानी उसको चिपक गया तो वो हैवी भी बन गया कि नहीं? हाँ, रेड भी नहीं, मतलब हैवी बन जाएगा और ऑर्डरली हो जाएगा ना। पहले तो इट वाज मूविंग एवरीवेयर Mg2 plus, then it was only Mg2 plus and Cl minus, so it was moving in the entire solution. But what will happen, slowly water will surround it, so it will become orderly structure or not? Yeah, for a reaction there is an increase in both enthalpy and entropy. Under what condition does the reaction occur spontaneously? क्या क्या बढ़ रहा है तेरा, बोल। एंथैल्पी बढ़ रहा है मतलब डेल्टा एच क्या हो रहा है, बोलो बेबी? पॉजिटिव। डेल्टा एच भी पॉजिटिव। याद आ रहा है ये कौन सा कंडीशन था, बोलो। सो सॉरी। अरे बोलो ना भाई, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? सिर्फ ओनली एट हाई टेम्परेचर। समझा ना? तो ये यहाँ पे आएगा, देख क्या लिखा है। तो सर एंट्रोपी इंक्रीजेस कहाँ पे लिखा है, किधर गया भाई? ओनली एट, यहां से नहीं समझेगा, मैंने जो दिया उससे मेथड से कर। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला, एंडोथर्मिक है बट इट इज स्पॉन्टेनियस। अमोनियम क्लोराइड कौन है भाई? सॉलिड है। सॉलिड को पानी में डालेगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो स्पॉन्टेनियस बढ़ेगा कि नहीं, बोलो बेटा? और बेटा एंडोथर्मिक था तो डेल्टा एस क्या है तुम्हारा, बोलो बेटा? पॉजिटिव। एंड डेल्टा एस भी क्या है, बोलो बेटा? पॉजिटिव ना बेटा। देखना बेटा, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस ना बेटा, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस ना। Lifting of water to the top of hill is quite possible. Why can't this be considered as a spontaneous process? बोलो। पानी तो ऊपर लेके अपने आप जाएगा ऊपर। हाँ तो बिकॉज इट डज नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? फॉर क्लोरीन, अगला अगला चल बता जल्दी फटाफट। पहला डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। बट डेल्टा एच क्या होगा? फॉर्मेशन हो रहा है ना बेटा, कोई भी चीज फॉर्म होती है तो फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। फॉर अरे कोई भी चीज फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज, पढ़ाया था तभी। डेल्टा एस तुम्हारा नेगेटिव क्यों, समझा क्या? एंट्रोपी ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। क्यों? दोनों भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है। डायमंड इज मोर कॉम्पैक्ट, एंड डायमंड में बेटा विच हाइब्रिडाइजेशन इज देयर? sp3। ग्रेफाइट में क्या होता है? sp2 ओनली होता है ना बेटा, भाई। लेस एंट्रोपी लेस, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू फॉर्म नेटवर्क, और ये ग्रेफाइट में ओनली वेन डर वाल्स फोर्सेस होता था, डायमंड में तो पूरा प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड होता था बेटा। प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी लेयर्स, ग्रेफाइट पता स्लाइड होता है, पेंसिल से लिखते हैं तो मार्क आता है कि नहीं, बिकॉज वो वीक वेंडर वाल फोर्सेस आते हैं, वेरी स्लिपरी। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 था, और डायमंड में क्या था बोलो बेटा? sp2। अरे डायमंड में sp3 और ग्रेफाइट में sp2। डिफाइन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, हाउ दे आर रिलेटेड। एंट्रोपी क्या था बोलो बेटा? डिग्री ऑफ मेजरनेस। फ्री एनर्जी इज व्हाट बेटा? बताया था ना, कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क। अरे बोला था ना तुम लोग 8 घंटा पढ़ सकते लेकिन पढ़ोगे 2 घंटा ही, राइट ना? Explain why the entropy of a pure crystalline substance is 0 at 0 Kelvin. This is third law, beta. This is third law, beta.
थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा नहीं ना बेटा, याद रखो। थर्ड लॉ क्या होता है, कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसका एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा? अरे परफेक्टली अरेंज्ड रहेगा ना बेटा, मॉलिक्यूलर मोसेस सीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चल बेबी कैसे करेगी सब? डेल्टा जी जीरो दिया है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट वाज द फॉर्मूला। अरे यार लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, एकदम लास्ट फॉर्मूला देख। बेबी 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 क्या था लास्ट वाला, ये देख रहा। डेल्टा जी जीरो इजिकल टू व्हाट, माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। तो लोग ने तेरे को क्या दे दिया है बोल? अरे ये लोग ने ऐसा लिखा है यार, डेल्टा जी माइनस लॉग के, ये के ढूंढने का है। समझ में आ रहा है? चल तेरे को क्या क्या दे दिया है, ये दे दिया है। अच्छा ये किलो जूल को तो तू किस में कन्वर्ट करेगी, जूल में, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 8.314 जूल लेते। टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन केल्विन, इट इज ऑलवेज इन केल्विन, दिस इज गिवन बेटा। केल्विन दिया है ना तेरे को भाई, देखना। तो क्या करेगी बेटा, 298, तो लॉग के एक तरफ आ जाएगा, ये सब यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, देख लॉग के देखा। इसको जूल में कन्वर्ट क्यों किया, समझा? क्योंकि आर का वैल्यू इज व्हाट, 8.314 जूल, वो किलो जूल्स में नहीं है। अब बेटा तेरे को यहाँ पे लॉग है, एक ये है, तेरे को पूरा सॉल्व किया, तेरे को कितना आंसर आया, ये 2.303। अब तेरे को के का वैल्यू चाहिए, तो तेरे को लॉग निकालना पड़ेगा ना दोनों साइड। तो व्हाट विल टेक, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग, ऐसे सब में दे विल गिव यू एंटी लॉग का वैल्यू। हाँ, लेकिन तेरे को लॉग टेबल तुम लोगों को सिखाया है, लॉग टेबल देखने के लिए। हाँ तो वो लॉग टेबल से हो, तो ये एंटी लॉग लेके ही आएगा, वरना तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगी ना। तो दे विल गिव ऐसा, एंटी लॉग ऑफ 2.38 इज दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे ये वैल्यू तेरे को दे देगा, ये एंटी लॉग ऑफ 2.3। व्हाई यू टेक एंटी लॉग, वेरी गुड क्वेश्चन ब्रो, हियर इट वाज व्हाट बेटा, लॉग और नॉट, टेल मी। चलो मैं तेरे को पूरा बताते, आजा, आ जा बेबी, आ जाओ, ये देख भाई, फॉर्मूला क्या बोल, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के, बरोबर। अच्छा अभी तेरे को इसका वैल्यू पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो ये सबको तूने एक तरफ ले लिया, तो तेरे पास ये अलग बच गया कि नहीं बोला, लॉग के। अभी ये तू सब यहाँ पे भेज देगी इसके नीचे, और ये इसका वैल्यू पता है, तो कैलकुलेट करके तेरे को आंसर लेटर से क्या आया, एक्स आया। क्या आया? अभी तेरे को पूछा गया के का वैल्यू तू, तो के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, एंटी लॉग यहाँ पे ऑफ के एंड एंटी लॉग ऑफ दिस, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अरे नाइन्थ टेंथ में तो लॉग पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, अरे एंटी लॉग ऑफ लॉग इज व्हाट, एंटी लॉग लॉग, बचा एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है, तो अभी तेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ के बचेगा। एंड यू कैन टेक एंटी लॉग ऑफ दिस, ये लॉग टेबल होता है, उसमें देखना होता है। मैं सिखाऊंगा तुमको लॉग टेबल कैसे देख, लॉग टेबल कभी बताऊंगा, डोंट वरी। बट बेटा दे विल गिव यू, दे विल ऑलवेज गिव यू एंटी लॉग का, सीबीएसई में जनरली देते हैं। तो देयर यू माइट हैव कम अक्रॉस ना दैट लॉग एंटी लॉग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओके ओके नॉट अ प्रॉब्लम। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ए फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या करेगी बेल बेटा, ए और वो फॉर्मूला में डाल देना, टेम्परेचर 27 को पहले तू केल्विन में कन्वर्ट कर दे। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, बस अभी देख डेल्टा जी का वैल्यू दिया है, इसका भी दिया है, ये किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर देगी, जूल में, हाँ? क्योंकि एक ही वाला जूल में ही है, वरना रॉन्ग हो जाओगे। टेम्परेचर आपको दिया है ना, केल्विन में कन्वर्ट कर, बराबर है। अब तू पूरा सॉल्व करेगी, सुन बेटा, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो डेल्टा जी का नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना बेटा। सो पॉजिटिव, therefore reaction is non spontaneous and not feasible। हाँ हो गया बस, अभी यही सब दिया बेटा। हैवी, अरे 1 घंटा भी नहीं पढ़ा यार, हैवी क्या क्या सिलेबस हो गया बेटा, ये चैप्टर का खत्म हो गया। अरे लेकिन खाली अभी मैं वही सम्स कर रहा हूँ उसका, और क्या कर रहा हूँ। हैवी तो साइंस को लिया फिर बेटा, हैवी लग रहा था वही तो। हाँ क्या अरे वो लॉग खाली, एंटी लॉग खाली।
फिजिक्स भी लाई। मैथ भी तो राव सर बहुत बैठा के खिंचवाते रहेंगे ना, तभी वहां पे नहीं बोला सर इट इज गेटिंग हैवी। So we told today someone said in class. Ended up. अच्छा ये समझ में आया कि नहीं, बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है पक्का? अरे कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, अभी खाली तुम लोग खुद से करना करते, मैं नहीं करा, खुद से आप करना, आप आपको आएगा और मैं कराऊंगा ना बेटा, नेक्स्ट क्लास में आई कंप्लीट रिमेनिंग। बट आई व्हाट आई वांट बेटा, आप लोगों ने ऐसे खाली मत, मैंने आपको करा दिया, देख मैंने आपको बोला था मैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोला है, व्हेन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, दिखाई देते हैं रिव्यू। तो डेल्टा है तो डेल्टा है दिया हुआ है, ये टेम्परेचर के, तो ये जो बिलो दिस टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड अबव दैट इट विल बी। बेटा टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे कुछ नहीं देगा, मैंने जैसा बताया वो फॉर्मेट में आप ये करना बेटा। दैट्स ऑल बेटा, तन्वी बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय 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 बाय। Thank you.